चलते हैं लोकसभा, जहां पर कार्यवाही जारी है, वहीं पर आपको दिखाते हैं। विधायी पावर है नहीं, ये विषय है ना। आप विद्वान है ना। हाँ बोले आप। हाँ बोले। बोलने का जब इच्छा तो भी नहीं बोलने का मौका मिलेगा। आपको पर्याप्त। ये क्या बात है सर? बोलेंगे सर। ये संक्षिप्त 4 बिंदु पे सर, एक बिंदु आप पता नहीं, आप माइक दिया माइक चालू है आपका? नहीं, ये तो अभी चालू किया सर, दोबारा पढ़ना पड़ता है। आदत मत बनाओगे। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय की फैसले से यथास्थापित दिल्ली सरकार के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता को कम करना है। उच्चतम न्यायालय की फैसले को बदलने की कोशिश कर और दिल्ली सरकार के मामलों में हस्तक्षेप कर केंद्र सरकार संघवाद के उस महत्व को कमजोर करना चाहती है जो हमारी मजबूत और कार्यात्मक लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। 3 नंबर सर, आप विधायक और अध्यादेश उच्चतम न्यायालय की इस फैसले को निष्प्रभावी करने का प्रयास करते हैं, जिसमें दिल्ली सरकार की शक्तियां को बहाल करते हुए कहा गया था कि अगर सरकार को अपने नौकरों पर नियंत्रण नहीं। कॉम्पिटेंस के बारे में सिर्फ बोल सकते हैं और कॉम्पिटेंस के बारे में नहीं बोलता है तो तुरंत कंसिडरेशन करने के लिए बोल दीजिए। हम मेरिट पर चर्चा करने के लिए हम तुरंत तैयार हैं। एन के प्रेमचंदन जी। यस, आपका विषय, आप तो इस विषय पर लास्ट सर, ये विधेयक दिल्ली में उपराज्यपाल के अधिकार का विस्तार करता है। ये दिल्ली सरकार और संघ सरकार के बीच संबंधों को सरोकार में उपराज्यपाल के विवेकाधीन अधिकार का विस्तार करता है। प्रेमचंदन जी, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री। थैंक यू वेरी मच स्पीकर सर। हमेशा सदन की नियम प्रक्रिया के तहत आप बोले। जब एक नहीं माननीय आप नेता हैं, मैं पर्याप्त अवसर आपको पर्याप्त समय दूंगा जब बिल पर डिटेल चर्चा होगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सदन नियमों प्रक्रियाओं के तहत है, जिस विषय पर आप आपत्ति करना चाहते हैं उस विषय पर आपत्ति बोले, नियमों के तहत बोले। सर, आई vehemently oppose. Sir, I vehemently oppose the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 on 3 grounds. आप तो नियम से बोलोगे ना? हम नियम से बोला है। रूल्स की बात बोलना। रूल्स के बाद बोला है सर। Rule 72(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. I am questioning the legislative competence of the government in having the legislation of the bill number 1. Sir, it is against the principles of federalism which is being envisaged by the Constitution of India. Sir, federalism is one of the basic features of Indian Constitution. An elected government in the state of Delhi, it is not having the administrative and legislative control over the bureaucrats means the government there is no meaning in having the government of Delhi. That is why I am saying that it is absolutely taking away the administrative and legislative control by the bureaucrats and the political leadership and the elected. Sir, please, second. क्या सुने आपकी? आप 72 के नियम में बोलो, व्यवस्था दे रहा हूं आपको। Sir, this is going to override the Supreme Court judgment dated 11th May 2023, Government of NCT Delhi versus Union of India. Sir, let me read the Supreme Court judgment. The Supreme Court judgment says that the state court. No, this is I am talking on the legislative competence. Prahlad Joshi ji, I am talking on the legislative. Sir, Rule 72 says, if a motion to leave the introduce the bill is opposed, the speaker, if thinks fit, after permitting the brief statement from the member who opposes the bill, the motion and the member who moved the motion may without further debate put to the motion, provided that where the motion is opposed on the ground that bill initiate the legislation outside the legislative competence of the house, the speaker may permit the full discussion. Sir, it doesn't. Parliament is fully competent to pass this bill. If they want to talk on the merit, let them discuss when there is a consideration and passing, sir. Okay. Sir, the second point is, it is overriding the Supreme Court judgment dated 11 May 2023. The Supreme Court judgment is very clear that Delhi state government is having absolute power, administrative as well as the legislative supremacy is with the state government of Delhi. The intent of this bill is to override the Supreme Court. Sir, the third point. Sir, the third point.
Hey, please. Why you are having it? Sir, the third point. 239, sir, through 239, clause 7 of Constitution of India. Sir, so far the last 30 years of Indian experience, so far the clause 7, 239 article of the Constitution has not been invoked. Here in the preamble, if you go to see, there are 2 pages of preamble. In preamble, sir, very valid point, sir. In preamble, nowhere it is stated that why clause 7, 239 is invoked is not being stated in the preamble. Preamble is incomplete. Therefore, I strongly oppose the bill in introducing. स्पीकर सर, मैं शुक्रगुजार हूं हमारे अपोजिशन लीडर का कि बगैर प्रधानमंत्री के हाउस चलने दिया सर। इन्होंने बगैर प्रधानमंत्री हाउस चलने दिया, इनका शुक्रिया अदा करता हूं सर। तो ये चेस और लूडो का खेल हो रहा है सर, उधर से चेस खेला जा रहा है, इधर लूडो खेला जा रहा है सर। मैं इसलिए अपोज कर रहा हूं कि ये आर्टिकल 123 का वायलेशन है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। तीसरा, ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। चौथा यह है कि सर सुप्रीम कोर्ट का 4 जुलाई 2018 का 5 जजेस का जजमेंट है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये इस हाउस को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, इसलिए मैं इस बिल की मुखालिफत कर रहा हूं। अब जबकि हमारे लीडर ऑपोजिशन ने अलाउ कर दिया बगैर प्रधानमंत्री के, मेरी आपसे गुजारिश है सर, मैं डिवीजन पूछूंगा, अब डिवीजन कराइए। स्वागत राय जी। Sir, with all the vehemence at my command, I beg to oppose the National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023. As has been mentioned before, that this bill is well outside the legislative competence of Parliament. तो दिल्ली सेवा बिल पर केजरीवाल के साथ कांग्रेस से सेवाएं राज्य का विषय से ये अधीर रंजन चौधरी की ओर से बयान सामने आया है। चर्चा के लिए सभी यहां पर सदस्य तैयार हैं। तो आपको बता दें कि लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश पर यहां पर बिल पेश होना था। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिल यहां पर पेश किया। यह बिल संविधान का उल्लंघन है। अधीर रंजन चौधरी की ओर से यह बयान सामने आया है। तो ये बड़ी खबर, चर्चा के लिए सभी को समय देंगे। स्पीकर की ओर से कहा गया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने की कोशिश की जा रही है। तो ये अधीर रंजन चौधरी की ओर से यह बयान सामने आया। ये बड़ी खबर, यह बिल संविधान का उल्लंघन है। दिल्ली सेवा बिल पर केजरीवाल के साथ कांग्रेस, सेवाएं राज्य का विशेष अधिकार है।